So electric intensity due to charge at any point situated along its axis. बरोबर है का? Electric intensity due to electric dipole at any point along its axis. Electric intensity at any point P situated at a distance. Suppose that we have an electric dipole. Let this is charge minus Q, this is charge plus Q. The line which passes through both charges is called as axis of the electric dipole. Let O is center of the dipole. Let length of the dipole is twice L. So distance of positive charge from origin or center and distance of negative charge from center is L. Now we have to find electric field or electric intensity due to this dipole at any point along its axis. So consider this axis is along positive direction of x-axis, or axis is along x-axis and equator is along y-axis. Equator is along y-axis. Now let P is any point. P of x0 is any point situated at a distance x from origin. Center of the dipole is the origin of the coordinate system. Say, let P of x0 is any point on the x-axis, that is on the axis of the dipole, situated at a distance x from origin. What we have to find? We have to find electric intensity at this point P due to this electric dipole. Now at this point P, which is situated at a distance x from origin, as this distance is x, positive charge is at a distance L from the origin, point P is at a distance x minus L from the positive charge. बराबर है क्या? बराबर है क्या? Point P is at a distance x minus L from positive charge. Now point P is at a distance of x plus L from negative charge. P is at a distance of x plus L from negative charge. बराबर है क्या? P is any point on the axis of the dipole situated at a distance x. P is at a distance x minus L from positive charge and P is at a distance of x plus L from negative charge. यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अब एट दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर इस चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, उसको E1 बार मान लेते हैं. E1 bar is the electric intensity at point P due to charge plus Q, which is directed away from the charge, and E2 is electric intensity at point P due to charge minus Q. E2 is electric field. समझ रहा है क्या? E2 is electric field at point P due to negative charge Q, which is directed towards negative charge. हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो निकालना है. उसके लिए हम क्या करेंगे? एट पॉइंट P पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसका फार्मूला यूज करेंगे. एट पॉइंट P नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला यूज करेंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे. तो दैट विल गिव अस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है. समझ रहे हैं क्या? अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज 1/4πε0 Q अपॉन x माइनस L ब्रैकेट स्क्वायर. R स्क्वायर होता है ना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज, तो यहाँ पे x माइनस L है. अगर E2 लेंगे तो 1/4πε0 माइनस Q अपॉन x प्लस L ब्रैकेट स्क्वायर होगा. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू
चार्ज क्यू अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आई कैप लिखेंगे, यहाँ पे भी आई कैप लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आई क्या बात? अब इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे? E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 या E1 बार प्लस E2 भी कर सकते हैं। अब E1 इन दोनों की जब हम एडिशन करेंगे तो 1/4πε0 ये बराबर है क्या? सिर्फ E1 और E2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहां से कॉमन निकालेंगे 1/4πε0, ये कॉमन निकल गया, Q भी निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में रहेगा 1/x माइनस L ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/x प्लस L ब्रैकेट स्क्वायर, यही रहेगा। बराबर है क्या? अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर E इक्वल्स टू, we are going to find electric intensity at point B due to electric dipole. Point B is on the axis, so axis पे electric dipole कितना होगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम LCM निकालेंगे, तो x प्लस L ब्रैकेट स्क्वायर x माइनस L ब्रैकेट स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे। अब हमारे पास फॉर्मूला है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होगा, तो p प्लस q p माइनस q होता है। सो फाइनली वी हैव 4πε0 p प्लस q, p माइनस q करेंगे तो ट्वाइस x और ट्वाइस l मिलेगा, और यहाँ पे a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। समझे क्या? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इज इक्वल टू 1/4πε0, मैं इस Q को और ट्वाइस L को करीब ले लेता हूँ, इनटू 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। So 1/4πε0 p into twice x upon x square minus l square bracket square। यहाँ तक तो आ गए हम। अब आगे इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो डिस्टेंस ऑफ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ओरिजिन स्मॉल l है, और डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? x कितने डिस्टेंस पे? हम ऐसा मान के चलते हैं कि L इज वेरी वेरी लेस देन x। ये जो डिस्टेंस है x से बहुत छोटा है। अगर L इज वेरी वेरी लेस देन x होगा तो उसका स्क्वायर और ज्यादा लेस देन होगा, तो वो निग्लेक्ट हो जाएगा। L स्क्वायर विल बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद x स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे अगर इसको निग्लेक्ट कर दिया तो x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू 4, बराबर है क्या? और फाइनली मैं यहाँ पे बना देता हूँ हार्ड अपना एक्स्ट्रा का वर्क यहाँ पे कर देते हैं आखिरी मेन पॉइंट। तो x और x रेज़ टू 4 है, तो x चला जाएगा, x क्यूब रहेगा। सो फाइनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P situated at a distance x from the center of the dipole is 1/4πε0 2p upon x cube. This is standard form. Electric intensity at any point P situated at a distance x from the center of the electric dipole is 1/4πε0 2p upon x cube, where p is electric dipole moment of the dipole. p आपका ध्यान नहीं मैडम? Electric intensity at any point P situated at a distance x from the center of the dipole is 1/4πε0 2p upon x cube। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? एक बार अच्छी तरह से रीड करो।